see the title page of your book, and hopefully all of you are having this book at home. But if you don't have the book, you can download it from the Federal Directorate website, or you can get it from there's a Facebook page with the name Islamabad Model College for Girls, Koring Town, Islamabad. There you can find the link to download this book. Bismillah Rahman Rahim. We're going to start the book. This is the table of contents, and here you can see that total of 7 chapters are included in this book, but only first 2 chapters are included in the first term. Chapter number 1, programming techniques, and chapter number 2 is the programming in C language. Today I will tell you about some programming techniques. Now we are going to start our chapter number 1, that is programming techniques, and here you will study if you are having some problem, how can you solve it on the computer. There are multiple you can say steps to solve any problem on the computer. First you have to define the problem, then you have to analyze the problem, then you have to plan the solution of the problem. There may be many solutions of the problem, but you have to select only one solution. There are many candidate solutions for the problem, but you have to select the best one among of them. Then when you define the problem and you have selected the solution of the problem, then there comes algorithm. You have to define the solution of the problem. You have to give the solution of the problem through the help of algorithm, and then you draw flow chart, and all of these topics you have already been studied in 8th class, if you remember. So I don't think so there is any topic that is new for anyone. You all are quite familiar with this concept. Now I'm going to start with the definition of the computer, and as a computer students, I don't think so any one of you don't know the definition of a computer. Computer is an electronic device. There are many definitions of the computer, but you can simply define computer in one sentence as computer is an electronic device which is used to which is used to for solving the problems. It takes input, it processes input, and then it produces some meaningful information in the form of output. Or you can remember, or you can memorize any of the definition you have already learned in grade 6, 7, 8, 9, 10, but the definition should be precise and brief according to your grade. Now there comes the understanding of the problem, and solving problem is the main task of computer science, which is the job of the computer programmer. Programmer must first understand how a human solves a problem, that translate it into a set of instructions in a programming language that a computer can understand and execute. First of all, you must know who is a programmer. A programmer is a person or a human being who program any problem, and a programmer is a person who knows that particular programming language in which he intends to design a program. So he must know all the rules and regulations, and he must have a very brief information about how to use the language. But before that, you must all know that how will we solve the problem, and to solve some problems we have to use some some steps that are going to use in solving the problem. And these steps are: number 1 is the defining the problem, second step is analyzing the problem, third step is the planning the solution of the problem, fourth step is candidate solution of a problem, fifth step is the select the best solution. I would like to give you an example from our daily life, and you have already go through with this example in grade 8, if you remember. आपको याद होगा वहाँ पे हम लोगों ने एक एल्गोरिथम पढ़ा था जब हमने टी बनानी थी. वी हैव टू मेक अ टी,
and tea to prepare tea is not a big deal. मेरा ख्याल है जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से सबको ही चाय बनाना आती है, मगर चाय बनाना भी आपकी एक डेली लाइफ का, एक डेली रूटीन का प्रॉब्लम है, ठीक है। आप उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप उसमें से इनपुट्स सेपरेट करते हैं, आप उसमें से प्रोसेसिंग सेपरेट करते हैं, एंड देन जो आउटपुट के लिए आपको चीज़ें चाहिए होती हैं उनको आप सेपरेट करते हैं, और डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। आपको पता है कोई भी चीज़, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आप उन स्टेप्स में अगर निकालते हैं तो आपको अप्रोप्रिएट सलूशन निकलता है उस प्रॉब्लम का, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाय को भी बनाने का प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना करें तो आपको पता है कि आपकी चाय उतनी अच्छी नहीं बन सकती है, ठीक है ना। जब आप पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर चाय को बनाने का फॉलो करते हैं तभी आपकी चाय अच्छी बनती है। Exactly that is the case with the solution of any problem which you are going to give to the computer. अगर आपने कंप्यूटर हम क्यों यूज़ करते हैं गर्ल्स, आपको पता है हम हमारी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो कि अगर हम खुद अगर सॉल्व करें हम कर तो सकते हैं, लेकिन बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम कंप्यूटर इसलिए यूज़ करते हैं कि टाइम एफिशिएंसी हो जाए हमारे लिए, और हम जो है आराम से कम से कम टाइम में मैक्सिमम हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें। जैसे पहले आप लोगों के टीचर्स रिज़ल्ट बनाते थे, मैनुअल रिज़ल्ट होता था, अगर वो मैनुअल रिज़ल्ट आज भी आप बनाने बैठे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उसमें गलती के चांसेस भी बहुत हैं। अगर आपकी क्लास में 60-70 स्टूडेंट्स हैं और सब स्टूडेंट्स का आप रिज़ल्ट कैलकुलेट करने चाह रहे हैं थ्रू कैलकुलेटर, तो देयर इज़ अ चांस कि कोई मिस्टेक आपसे हो जाए और आपका पूरा के पूरा रिज़ल्ट उसमें ख़राब हो जाता है। बट यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद इट, विद द फैक्ट दैट कंप्यूटर डोंट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है। इट कांट मेक एनी मिस्टेक, बिकॉज कंप्यूटर को जो भी आप चीज़ देते हैं, जो भी प्रॉब्लम देते हैं, वो उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको दे देता है, बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन देता है। वो रिलायबल भी बहुत होता है, वो सोल्यूशन आपको पता होता है कि ये गलत नहीं हो सकता कंप्यूटर का आंसर। मगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहला उसका स्टेप है दैट इज़ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना मीन्स कि आप पहले बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है ना वही उसकी डेफिनेशन होती है। जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये डिफ़ाइन कर दिया आपने प्रॉब्लम को, ठीक है। एक सिंपल एक लाइन में या सिंपल वर्ड्स में आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, ताकि आपको ये तो पता हो ना एटलीस्ट कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्या। यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है प्रॉब्लम नंबर 1, अ पर्सन इज़ अनहैप्पी विद द प्रोडक्ट सर्विस ही और शी हैज़ परचेज फ्रॉम द कंपनी। या ये प्रॉब्लम भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने कोई चीज़ परचेज़ की है किसी कंपनी से, लेकिन जब उसको वो मिल गई तो उसको वो मिलने के बाद उससे हैप्पी नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अब क्या करना है, ठीक है। this is called the definition of the problem. First you define the problem, then the next step comes, that is analyzing the problem. फिर आप उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। what is the analysis of the problem? Is it possible to solve the problem on the computer? Because we are talking about the computer, so we will all use the word computer over here. Is it possible to solve the problem on computer? जो भी आप कंप्यूटर को देने जा रहे हैं प्रॉब्लम, क्या वो उसका सोल्यूशन है भी कंप्यूटर पे या नहीं है। जैसे आप चाय बनाने चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कंप्यूटर आपको चाय तो नहीं बना के दे सकता, ठीक है ना। कंप्यूटर क्या कर सकता है, कैलकुलेशंस के आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपने किसी चीज़ का प्रिंट लेना है वो दे सकता है, आपने इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है ना कंप्यूटर। व्हाट इज़ टू बी डन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या है। व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सीक्वेंस भी आपका ठीक होना चाहिए, अगर एक भी स्टेप आपका आगे पीछे हो जाता है तो डेफिनेटली आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। जैसे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि आपको पहले सम फाइंड आउट करना है, अगर आपने सम फाइंड आउट नहीं किया तो आप एवरेज इस तरह से कैलकुलेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आउटपुट इज़ रिक्वायर्ड। इनपुट क्या है एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, अगर 5 नंबर्स हैं आपके पास तो वो 5 के 5 नंबर्स क्या हैं, इनपुट है, और आउटपुट क्या है, एवरेज आपकी आउटपुट है। हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल, देयर मे बी 2 सोल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। फर्स्ट सोल्यूशन इज़ द सिंपलेस्ट वन, एंड व्हाट इज़ दैट कि आपने उसको सारे नंबर्स को 5 नंबर्स को आपने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 आपने कर दिया। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मोस्ट सोल्यूशन, ठीक है।
सेकंड ज़्यादा बेहतर वाला सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आपने एक वेरिएबल लिया सम का, और सम के वेरिएबल में आपने पाँचों के पाँचों नंबर्स का सम करके आपने उस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, फिर आपने सम डिवाइडेड बाय 5 करके आपने उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, ये ज़्यादा ब्रीफ हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो भी बेस्ट सोल्यूशन आपको फील होता है कि जो भी बेस्ट सोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, आप वो वाला सोल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाउ सोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, और आप इस सोल्यूशन को आप इम्प्लीमेंट कैसे करना है। टू एनालाइज द प्रॉब्लम नंबर 1, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन द माइंड। नो द आउटकम यू वांट। ठीक है, आपको पता है कि आपकी क्या आउटकम आनी चाहिए इस एग्जांपल में, एवरेज। प्रिपेयर फॉर द डिस्कशन। अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आपने कुछ लोगों के साथ मिल के आपने उसको एनालाइज करना है, उसके बगैर आपको उनके रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं चल सकता। जैसे आपने वो यू आर गोइंग टू यू आर गोइंग टू मेड सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, और आप कैलकुलेटर बनाने के लिए आपको जो फंक्शंस चाहिए, जिस भी पर्सन ने आपको कहा है कैलकुलेटर बनाने के लिए, तो आप पहले उससे पूछेंगे कि आपको सिंपल बेसिक फंक्शंस चाहिए, प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन, या आपको कॉम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स वाला कैलकुलेटर बनाना है जिसमें कुछ एडिशनल फंक्शंस भी हैं, जैसे कॉस, सीकेंड, साइन। हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं ना कैलकुलेटर से, या फैक्टोरियल नंबर का फाइंड कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमाइंडर के लिए उसमें कोई फंक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप पहले अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के साथ मिलके पहले आप उनको एनालाइज करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लेंट प्रोसेस इज एंड फॉलो दिस। व्हाट टू एनालाइज प्रॉब्लम 2, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। व्हाट आर द सब्जेक्ट मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन ई सब्जेक्ट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द एवरेज मार्क्स। यानी कि इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है कि यू हैव टू कैलकुलेट द स्टूडेंट रिज़ल्ट। ठीक है, यू हैव टू मेक द स्टूडेंट रिज़ल्ट। तो उसके लिए आपको पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, और आपने उसको कैसे आपने उसके मार्क्स को टोटल करना है, या मार्क्स का आपने एवरेज जो निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है। उसके बाद आप प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जब आपको प्रॉब्लम अच्छी तरह से एनालाइज हो जाती है तो आप उसकी प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लानिंग फेज में क्या करते हैं, प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अ क्रिएटिव स्टेज of problem solving. It refers to the dividing the solution to steps and arranging them into proper order that will solve the problem. To plan the solution of the problem, after analyzing the problem, the following planning is required. How to discuss our problem. Talk to the right person. The person you speak must have the ability to resolve the issue. That is a store manager, business owner or a supervisor. For example, अगर आपने किसी से कोई चीज़ परचेज़ की है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपने ली है किसी कंपनी से, तो और वो ख़राब निकली और आपको उसको कंप्लेन करनी है, तो यू मस्ट नो द अप्रोप्रिएट पर्सन, ठीक है, जिससे आप बात करेंगे। और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या आपको स्टोर मैनेजर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या बिज़नेस ऑनर सॉल्व करेगा, या कोई सुपरवाइज़र सॉल्व करेगा इस चीज़ को। फोकस ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट और सर्विस रादर देन टेकिंग इशू विद द पर्सन। किसी पर्सन के साथ आपको पर्सनल इशू नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने सिर्फ रेलेवेंट होकर उस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। स्टे काम एंड रीजनेबल, टेल देम व्हाट आउटकम यू वांट। ये सारी चीज़ें बच्चे, ये पॉइंट्स आप लोगों के ही याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं। इनफैक्ट इसमें याद करने की तो कोई बात नहीं है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जब आपने प्लान कर लिया, ठीक है, उसमें जो सेकंड स्टेप है, दैट इज़ कंसिडर देयर रिस्पॉन्स। डज द रिस्पॉन्स रिजॉल्व योर इशू और इज़ इट आ रीज़नेबल कंप्रोमाइज़। क्या आपका इशू उससे सॉल्व हो जाता है, या कंपनी वाले कह देते हैं कि नहीं जी, हम आपको या तो पैसे रिफ़ंड कर देंगे उस प्रोडक्ट के, या हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तब तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन हो सकता है वो ये भी कहें कि हमारी पॉलिसी ही नहीं है कि ना हम प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं, ना ही हम आपको पेमेंट देते हैं। तो डेफिनेटली आपने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ किया है या नहीं किया। डू यू वांट टू टेक द टाइम एंड एफर्ट टू कैरी ऑन इफ़ द रिस्पॉन्स इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री। अगर आप नहीं सेटिस्फाइड अपने रिस्पॉन्स से, तो क्या आप किसी और पर्सनल के पास जाना चाह रहे हैं, किसी हायर अथॉरिटी के पास जाना चाह रहे हैं, या आपने छोड़ दिया उस चीज़ को। बेस्ड ऑन व्हाट यू नो ऑफ योर राइट्स, डू यू थिंक दैट यू हैव अ सॉलिड बेसिस टू टेक द मैटर फर्दर।
ठीक है। फर्दर आपको तभी जाना चाहिए जब आपके पास कोई सॉलिड रीज़न हो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। टू ये ना हो कि कंपनी वाले आपको कह रहे हैं हम आपकी मसला हल कर रहे हैं, करें आप उनसे लड़ाई करके आप कहें नहीं जी मैं तो आपके बॉस से ही बात करूँगा, उन्हीं को शिकायत लगाऊंगा, आपने तो मेरे से बदतमीज़ी की है या ये है वो दिस एंड दैट। ऑल सब्जेक्ट्स मार्क्स आर टू बी एडेड टुगेदर टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द मार्क्स। प्रॉब्लम नंबर 2 को अगर आप लेकर चलते हैं तो उसमें क्या है कि आपको क्या करना पड़ना है, ऑल सब्जेक्ट मार्क्स आर टू बी एडेड। ज़ाहिर सारे मार्क्स को आप ऐड करेंगे, आपको मार्क्स का सम मिल जाएगा, और जब आप सम को टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं ना हमारे पास। मैंने अभी आपको एवरेज कैलकुलेट करने के ही 2 सोल्यूशंस बता दिए। इसी तरह से वही प्रोडक्ट अगर आप चेंज कराना चाह रहे हैं तो उसके भी मल्टीपल इश्यूज़ हो सकते हैं। आप प्रॉब्लम को आप अपनी प्रोडक्ट को कोरियर के थ्रू कंपनी भिजवा दें, या आप बाय वॉक बाय हैंड उनको जाके दें, अपनी प्रोडक्ट वापस वहीं पे जाके आप उनको करवा दें, या इसके लिए कोई और तरीका इख्तियार करें। तो सोल्यूशन जो भी है आप उसमें से वो वाला सोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं जो आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और उस पर टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है। आप खुद जाएंगे तो आपको पता है आपका टाइम बच जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप पहले कोरियर बुलवा रहे हैं, उससे भिजवा रहे हैं, फिर वो आगे से आपको कोरियर सर्विस के थ्रू वापस भिजवा रहे हैं, प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है। सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन, आपने जो सोल्यूशन सेलेक्ट करना है उसमें आपने 3 फीचर्स को ज़रूर व्यू करना है। वो क्या हैं फीचर्स? वो ये हैं कि आपने स्पीड को देखना है, कॉस्ट को देखना है और कम्प्लेक्सिटी को देखना है। ठीक है कि आप जो भी सोल्यूशन ले रहे हैं वो आपको फ़ौरन आंसर, वो स्पीडी होना चाहिए, वो शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, आपको उसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट ना आ रही हो, कम मिनिमम कॉस्ट जहाँ आ रही हो आप वो वाला सोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, और ना ही वो इतना कम्प्लेक्स हो कि आपको उसको सॉल्व करते करते ही बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाए, आपसे सॉल्व ही ना हो। जी, ये जब सारे स्टेप्स आप परफॉर्म कर लेते हैं तो नाउ यू आर रेडी टू मेक एन एल्गोरिथम। जब आप बिल्कुल अपनी आपकी प्रॉब्लम ठीक तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी देखें हम बड़ा काम को जब करते हैं, अगर हम उसको रफ़ किसी कॉपी पे उसका एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ बिल्डिंग तो और बिल्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर बहुत सारे फ्लोर्स हैं, कस्टमर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए। अगर आप उसको एक रफ़ मैप बना देते हैं, रफ़ स्केच बना देते हैं, तो आप उसको कस्टमर से मीट करके और आप उसकी रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं कि अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो, रादर देन कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें और कंस्ट्रक्शन के बाद आपको कस्टमर बताए कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको गिरा तो नहीं सकते ना आप। इसी तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कंप्यूटर पे सॉल्व करने से पहले वाला स्टेप है ये, हम उसका एल्गोरिथम बनाते हैं और एल्गोरिथम से हम उसकी एक डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है। एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम मीन्स मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक और प्लान। Algorithm is a step-by-step problem-solving method that is easy to understand and follow. It is a set of steps that clearly defines a sequence of operations to solve a problem. यहाँ मैं Now this is the next part of the video of lecture number 1. We will start from the algorithm. There are many algorithms available in this section of the book. First, you have to define the algorithm. Algorithm means method, procedure, technique or plan. Algorithm is a step-by-step problem-solving method that is easy to understand and follow. It is a set of steps that clearly defines a sequence of operations to solve a problem. Must remember that algorithm is always written in some simple English language words so that it would become very much easy for you to understand the algorithm. You just solve your problem in the form of steps, and you must have to mention the step numbers while writing algorithm. Measuring efficiency of an algorithm. What is that? Measuring efficiency of the algorithm. It means that you have to select, as there are multiple solutions of the problem, you have to select the best possible solution. Similarly is the case with the algorithm. There may be multiple algorithms
for the solution of the problem, but you have to select an algorithm which is cost effective, which is time effective, मीन्स के आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ऐसा एल्गोरिथम होना चाहिए जिसको यूज़ करने से आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, कंप्यूटर का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी उसको जो है आप मिनिमम स्पीड के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर वो आपको मैक्सिमम आउटपुट उसको देनी चाहिए। इसी तरह से स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि एल्गोरिथम जब आप लिख रहे हों, डेफिनेटली आपने उसे किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड जितना कम से कम होगा, उतनी ही कंप्यूटर की जो मेमोरी स्पेस है, मेमोरी रिक्वायरमेंट है, वो कम होगी। तो कंप्यूटर की स्पेस भी कम से कम यूटिलाइज़ होनी चाहिए, स्टोरेज स्पेस कम से कम यूटिलाइज़ होनी चाहिए। ये ना हो कि आपका एल्गोरिथम इतना लंबा हो जाए कि वो बहुत सारा आपकी स्पेस ले ले, और फिर डेफिनेटली जितनी ज़्यादा कंप्यूटर की स्टोरेज स्पेस वो कैरी करेगा, उतना ही टाइम लेगा उसको उसकी एग्जीक्यूशन में भी। दैन इसके बाद आ जाते हैं एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दी हुई हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जांपल नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी 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 मच ईजी एग्जांपल। You all know how to find the sum and product and average of the 5 numbers. It is not a big deal, not a big task. First, you have to plan your solution. In planning of the solution, you have to separate the inputs, outputs, and processing. What is the input? 5 given numbers. This is your input. Required output, you have to find the sum, product, and average of these numbers. And what is the processing? That you have to add to get the sum, you have to multiply the numbers to get the product, and you have to divide the numbers to get the average of 5 marks. Now here comes the algorithm. As you can see, here is the algorithm to find the sum, average, and product of 5 numbers. The step number 1, you have to mention you have to write the start statement over here. In step number 1, you have to mention let the 5 numbers be. अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जितने भी नंबर्स आपको एडवांस में नहीं पता कि नंबर्स कौन से हैं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास जितने भी नंबर्स होंगे, आपने उनको कोई ना कोई किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, और एक वेरिएबल्स के जो नाम है वो आप खुद से ले सकते हैं। जैसे आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं मैथ्स में, आप उनको सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाती है कि किसी जो रेक्टेंगल है उसकी हाइट और वेट इतनी है और आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करते हैं, लेट हाइट इक्वल्स टू दिस एंड लेट वेट इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू दिस, और फिर आप लेट एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू वेट, इस तरह से करके आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ना। सेम इज़ द केस विद दिस वन। एल्गोरिथम जब आप लिखते हैं तो उसके लिए जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, आप उसको अपने नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ए का, उसमें हमने फर्स्ट वैल्यू को स्टोर किया, दैट इज़ 2। वैल्यूज़ भी आप कोई सी भी ले सकते हैं। अगर आपको गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो फिर आप कोई सी भी ले सकते हैं। बी इक्वल्स टू 5, सी इक्वल्स टू 8, डी इक्वल्स टू 4 एंड ई इक्वल्स टू 12। स्टेप नंबर 2, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द सम। तो सम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सम इक्वल्स टू, यू ऑल नो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। इन नेक्स्ट स्टेप यू विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने प्रोडक्ट के वेरिएबल में स्टोर करना है, लाइक यू डू इन मैथमेटिक्स, लाइक दिस। एंड देन एवरेज, एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर्स। कैसे आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे? अब आपके पास सम ऑलरेडी आ चुका है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट नाउ। सम डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, एवरेज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से आपके पास एवरेज भी आ जाएगी। तीनों रिजल्ट्स को, तीनों आंसर्स को आपने सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज के वेरिएबल्स में यहाँ स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने आउटपुट पे इसको शो करना है, दैट इज़ आउटपुट, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। और स्टेप नंबर 6 में आपने इसको स्टॉप कर देना है। आप लोगों ने ग्रेड 8 में स्टार्ट और स्टॉप की स्टेटमेंट्स यूज़ नहीं की थी, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू एट ऑल। उसके बाद है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 अनइक्वल नंबर्स। और लार्जेस्ट नंबर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको 3 नंबर्स डेफिनेटली गिवन होंगे,
आपने पहले एक नंबर को चेक करना है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ ग्रेटर दैन सी, यानी कि ए को बी से भी बड़ा होना चाहिए और सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब ए लार्जेस्ट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपने क्या करना है, आपने फिर ये चेक लगाना है कि अगर ए नहीं है लार्जेस्ट तो आप किसको चेक करेंगे, बी को। बी इज़ ग्रेटर दैन ए एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली बी ग्रेटर होगा। और अगर ए और बी दोनों ही ग्रेटर नहीं हैं तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि सी ग्रेटर है। तो सी को चेक करने के लिए आपको कोई भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि अगर ए भी ग्रेटर नहीं है और बी भी ग्रेटर नहीं है तो आपका सी ग्रेटर है। तो आपने देखें यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में आपने लार्जेस्ट में सी को स्टोर कर दिया। क्लियर। अब जो लार्जेस्ट वाला वेरिएबल है उसके अंदर ऑटोमेटिकली जब ये प्रोग्राम रन होगा, एल्गोरिथम रन होगा, तो आप देखें कि लार्जेस्ट वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिकली जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो स्टोर हो जाएगा और आप उसको आउटपुट पे शो कर देंगे एंड देन यू विल स्टॉप द और यू विल एंड द एल्गोरिथम। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। और उसके बाद कुछ और भी दिए हुए हैं, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, इसको फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम बनाया हुआ है यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है। और ये ज़्यादातर एग्जांपल्स ऐसी हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप लोगों का मैथ्स अच्छा है तो आपको इनको प्रॉब्लम्स को करने में कोई भी मसला है। प्रॉब्लम नंबर 6 इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, एज यू कैन सी हेयर दैट व्हाट इज़ दिस प्रॉब्लम कि वी हैव अ मार्क ऑफ अ स्टूडेंट, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आप मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट के। लेट सपोज हमने स्टूडेंट के मार्क्स लिए हैं कंप्यूटर साइंस में, टोटल मार्क्स हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल 100। प्रॉब्लम क्या है कि हमने उसका ग्रेड फाइंड आउट करना है, कि मींस आपको कंप्यूटर इनपुट क्या दे रहा है, मार्क्स इनपुट दे रहा है और आपने आउटपुट में उसको क्या करना है, उन मार्क्स के अगेंस्ट उसका जो ग्रेड है वो आपने शो करना है। तो इसमें आपके मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप नंबर्स को चेक करते जाएंगे। अगर तो इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 80 देन प्रिंट ग्रेड A1, ठीक है। डेफिनेटली सारा चार्ट भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज पे या कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड मिलेगा। अगर आपको समझ आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता तो अभी इस एल्गोरिथम को या इससे जो ऑनवर्ड्स एल्गोरिथम्स हैं उनको आप रहने दें। आप फर्स्ट 5 एल्गोरिथम्स प्रिपेयर करें और फर्स्ट 5 एल्गोरिथम्स को यूज़ करके आपको फ़्लो चार्ट बनाना है। तो फ़्लो चार्ट भी आप सब लोगों को आता है बनाना, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी के जो रिमेनिंग एल्गोरिथम्स हैं वो आगे जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं ना उन सब में दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व। तो जब आप वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट इट। नाउ हेयर कम्स फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपने क्या करना होता है, एल्गोरिथम को जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेप्स एंड सिंबल्स, तो उसको क्या कहा जाता है, फ़्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट को के सिंबल्स ये सब आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे चार्ट में, टेबल के अंदर। एज यू कैन सी हेयर आर द सिंबल्स ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो लाइंस हैं, फ्लो लाइंस आर यूज टू ज्वाइन और यूज टू कनेक्ट वेरियस फ्लो चार्ट सिंबल्स। Then start and stop symbol है whenever you are going to start your flow chart or when all the functionality has been completed and you have to stop the flow chart, then you will use this symbol, ellipse shape. Input output symbols are used to write the input or output variables. Processing symbol is used to show the processing. Decision, whenever there is a decision involved in the solution of the problem, then you have to use this symbol. एज़ ये जो अभी हमने ऊपर आपको याद होगा एल्गोरिथम किया था लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का, वहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ हुई थी इफ़ की, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन सी देन ए इज़ लार्जेस्ट। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिसीजन था, मींस के दो कंडीशंस आपको गिवन है। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन तो एक ही है, और अगर वो ट्रू होती है तो एक रिज़ल्ट आता है आपके पास, और अगर वो फॉल्स होती है तो दूसरा रिज़ल्ट आता है, दूसरी आउटपुट आती है, ठीक है ना। ऐसी जितने भी कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं जिनमें येस या नो में आंसर होता है आपका, उसको डिसीजन कहा जाता है। तो डिसीजन जब भी आएगा वो वाली आपने स्टेटमेंट्स जो हैं डिसीजन बॉक्स में लिखनी है। कनेक्टर सिंबल है, अगर आपने एक ही पेज के ऊपर अपने एल्गोरिथम को अपने फ़्लो चार्ट को ब्रेक करके शो करना है, जैसे फॉर एग्जांपल पेज के टॉप पे आपने
सम वाला एल्गोरिथम जो था उसको आपने मैप किया फ़्लो चार्ट के ऊपर। अब बीच में आपको कोई और एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ रही है और पेज के एंड पे आपने प्रोडक्ट को शो करना है इन फ़्लो चार्ट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर सेम पेज पे आपने एल्गोरिथम एक ही फ़्लो चार्ट आपने ड्रॉ किया हुआ है तो फिर आप ये वाला कनेक्टर सिंबल यूज़ करेंगे ऑन पेज वाला। और अगर आप एक पेज के ऊपर फ़्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं और पेज एंड हो गया है और अब आपको उसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है तो फिर आप ऑफ पेज वाला सिंबल यूज़ करेंगे उसके लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए। मींस के ये कनेक्टर सिंबल्स क्यों यूज़ होते हैं, ये शो करते हैं कि एक ही फ़्लो चार्ट आपका अभी कंटिन्यू है। ठीक है, आई होप के सिंबल्स को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप यहाँ पे देख लें, एक मैं आपको फ़्लो चार्ट समझा देती हूँ। दैट इज़ फ़्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ द 5 मार्क्स। और ये आपने इसका एल्गोरिथम पहले लिखा है, उसमें देख लें स्टेप नंबर 1 जो था जहाँ से आपने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्ट को आपने एलिप्स शेप में लिखना है। उसके बाद आपने एरो लाइन लगाई है क्योंकि एरो लाइन आपको ये बताएगी कि अब फ़्लो कहाँ जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है जी इनपुट। और इनपुट के लिए हम हमेशा इनपुट बॉक्स लेते हैं। इनपुट में आपने 5 नंबर्स लिए थे, फिर रिमेंबर ABCD and E। Then there comes processing symbol, and in processing symbol you have done all the processing over here. That is what sum आपने कैलकुलेट किया था, प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था और एवरेज कैलकुलेट की थी। तो ये तीनों चीज़ें आपने प्रोसेसिंग सिंबल में रखी हैं। देन देयर कम्स आउटपुट। सारे जब आपकी प्रोसेसिंग हो गई, इट मीन्स कि यू हैव बीन जनरेटेड द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो उसको आपको शो भी करना है। उसको शो करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, दोनों के लिए यही सिंबल यूज़ होता है, आउटपुट सम प्रोडक्ट एवरेज। इसको आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स में, सॉरी पैरेललोग्राम में आपने इसको रखा, एंड देन यू स्टॉप्स द फ्लो चार्ट। I hope this lecture is very much easy for you. I don't think that there are some difficulties, and if there is some difficulty for you to understand this lecture, you can ask me any question. First 5 flow charts and first 5 algorithms are included. I am going to give you that as an assignment. आपने इन सबको करना है, रफ पेज के ऊपर आप करें। पहले आप इसको अच्छी तरह से रीड करें, जहन में, माइंड में आपने इसका एक रफ़ सा स्केच बनाना है और फिर आपने उसको ज़ुबानी किसी कॉपी के ऊपर आपने इनको सॉल्व करना है, ड्रॉ करना है। एल्गोरिथम लिखेंगे पहले हर प्रॉब्लम का, और फिर उसके बाद आप उसका फ़्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, ताकि आपको कम से कम अच्छी तरह से जो है वो आपकी ग्रिप हो जाए कि हाउ टू राइट द एल्गोरिथम, हाउ टू ड्रॉ द फ़्लो चार्ट। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये फिर मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी अभी क्लास आएगी उसमें मैं आपको एक्सटेंसिव क्वेश्चंस करवाऊंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें, दे आर वेरी मच इजी। और अभी इस लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ये खुद नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2-2 3-3 लाइंस के आंसर्स आप लिखें। जहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना है तो वहाँ पे आप 4 to 5 लाइंस तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन अ कंप्यूटर। इट इज़ वेरी ईजी। आप कोई भी अच्छी सी प्रिसाइज कंप्यूटर की डेफिनेशन ले लें, वो लिख लीजिएगा इसमें। नंबर 2 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपकी बुक में ऊपर वो दिया हुआ है, आप उसमें से 3-4 अच्छे से पॉइंट्स निकाल के आप इसमें लिख लेंगे। व्हाट इज़ फ़्लो चार्ट, इसको भी आपको फ़्लो चार्ट सिर्फ डिफ़ाइन करना है, जस्ट हैव टू डिफ़ाइन इट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फ़्लो चार्ट, फ़्लो चार्ट को यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं, आपको पता है क्या एडवांटेजेस हैं। बहुत आपका जो काम है उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं, एकदम से आपको देख के पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने कैसे निकालना है। किसी भी चीज़ को डायग्रामेटिक वे में जब आप करते हैं तो आपको उसको मेमोराइज़ करना बहुत आसान हो जाता है। ड्रॉ एनी 4 graphical symbols used in flowchart and explain them, and they are already given in the book. Here you can see. तो यहाँ से बजाय इसके कि आप 4 सिंबल्स ड्रॉ करें, आप ये सारे ही कर लीजिएगा। ठीक है, आप सबको आने चाहिए। ये सारा के सारा काम आपने अपनी होमवर्क की एक नोटबुक बनानी है साइंस की। आप लोगों को पता है बड़े साइज़ की बुक कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसका एक पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है और एक लाइंस वाला पेज होता है, जैसे आपने 9th क्लास में किया था। अगर आपके पास 9th क्लास की कॉपी है तो आप उसी पे ही 10th वाला पोर्शन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर उसमें इतने पेजेस हैं तो। अगर नहीं हैं तो फिर आपको नई कॉपी परचेज़ करनी है और आप उसमें
ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप